Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We welcome you in this orientation web session that we have prepared for the new nursery parents of Divisional Public School Lahore. In previous years, we have been conducting live sessions of this orientation program, but due to the present scenario of COVID-19, we are presenting it in a recorded form. The main objective of this session is to make your acquaintance not only with our school system, but also with some of the teaching strategies and techniques that are being used in the nursery classes. I'm sure by the end of this orientation session, you will be able to guide and facilitate your child in doing the tasks that will be assigned to him in the form of worksheets. Well, respected parents, some of our experienced and trained teachers have prepared presentations on the subjects of English, Urdu, and maths. But before showing these presentations, let me share some important information regarding our school, which will be extremely useful for you. Divisional Public School Lahore has two branches, Model Town branch and Township branch. Both the branches have fully equipped nursery KG wings. For a nursery class student, first week in the school is of great importance. We make sure that our students get familiar with the school atmosphere and settle into a routine quickly and easily. And for this purpose, different activities are planned beforehand. During the first week, school timings are short and feasible so that our younger students don't get bored or fed up. From the second week, normal school timings will be followed. As you can notice from this table that we observe different school timings for summer and winter. You can note down the timings from here. Just make sure your child reaches school at least 10 minutes before bell goes. Here is the address of our school's official website. All the latest information regarding syllabus, homework, fee challan forms, holidays is uploaded on it. I suggest you to keep on visiting this page on and off. Divisional Public School and Inter-College Model Town Lahore has its own Facebook page and a YouTube channel. Pictures of all latest events and happenings are uploaded on the Facebook page, whereas you will find videos of different school events and programs on our YouTube channel, DPS Media. So subscribe it as soon as possible. A very helpful thing that is available on our school website is the study pack for each class. Simply visit our school website, click the icon study pack, select the class, and you will find the whole study pack consisting of summer assignments, syllabus breakup of first term, and worksheets of all the subjects. This is the image of our school's result card for classes nursery and KG. Besides marking students' performance in written and oral examinations, we also grade them according to their personality traits, which are shown here. Throughout the year, we not only strive for our students' learning outcomes, but also work on their social skills. We send messages and information to the worthy parents through different sources like phone calls and SMS, whereas different circulars are also sent at homes carrying the messages regarding all the school activities. Important information is also conveyed through these circulars. Once the school is open, you can find latest information regarding school timings and holidays on our gate boards as well. Kindly note down the displayed phone numbers in order to contact at school. If you want to take any kind of information or want to leave a message, someone will always be available on these numbers during school time. We keep updating parents about the progress of our students. To discuss and share academic progress and growth of your child, parent-teacher meetings are held twice a year after each terminal examination. These meetings are typically scheduled in advance, and you will be intimated about them. In both the branches of Divisional Public School Lahore, there is a proper sick room where first aid facility is provided in case of minor injuries. A doctor or a trained nurse is always there to look after the children. We are lucky to have hardworking and dedicated custodial staff. In
each nursery and KG classes, there is a full-time Ayabaji who looks after your kids while they are with us. In nursery class, exams are conducted twice a year. First exams are the rehearsal exams which are held in January, and final exams will be at the end of February. At nursery level, students take written exams of English, Urdu and maths, whereas Islamia, social study and general knowledge are their oral subjects. Well, these were some of the points that we wanted to share with you. Now we'll move to the first presentation, which is on the subject of English. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mrs. Rifat Aslam and I am from Divisional Public School, Lahore. I welcome you to the DPS family. In this orientation program, I am presenting English subject for nursery class. Dear parents, English is not just a language anymore. It is being taught as a science nowadays. So now we need to learn new techniques of teaching. In this workshop, I am going to tell you some tips and tricks that are being used to teach English to our children, which will be useful for you as well. Before I move on, I would like to inform you that during the presentation, I'll switch to Urdu for your convenience so everyone can understand this. As you can see in this slide, we divided English into two parts, writing and reading. First, we will discuss about writing. Writing has 4 points. Pattern यानी के नमूना, formation यानी के बनावट, placement यानी के हुरूफ की सही जगह, and at the last types of letters. I'll tell you the details in other slides. As you can see, the pattern is very easy. It is simple print writing, so the children can easily learn it and also the parents can easily teach it. Next thing is formation. It is very important for a good writing. As you can see in this slide, capital and small both letters and arrows are showing the correct formation. Strictly follow them. Placement of letters are very important. All the letters cannot be written too close to each other because every letter has its own individuality. In order to maintain them, we must keep 2-finger gap in between two letters, and there must be only 6 letters in a line. Now let's move to the third and the last point, types of letters, यानी हुरूफ की अक़साम. There are 3 types of letters, sky letters, grass letters and root letters. इनका तफसीली तारुफ हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे. Sky letters which are facing towards the sky. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम लेटर्स जो हैं ये ऊपर की फर्स्ट लाइन से शुरू होते हैं और थर्ड लाइन तक जाते हैं. एंड दे ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स द स्काई. शायद इसीलिए हम इनको स्काई लेटर्स कहते हैं. Second types of letter is called grass letters. Those letters which are always written in between 2 central lines. And why we call them the grass letters? क्योंकि घास भी तो आसमान से नीचे और ज़मीन के ऊपर ही उगती है. As you can see, there are 14 basic grass letters: A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, and Z. The third and the last type of letters is root letters. There are 5 basic root letters, the letters which are written in the last 3 lines. ये तमाम हरूफ क्योंकि दूसरी लाइनों से शुरू होकर नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे कि एक दरख्त की जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं. That's why we call them the root letters. अच्छा, ये भी एक ट्रिक है कि बच्चों को उनके जहनी मियार के मुताबिक मिसालें दे के समझाएँ तो वो आसानी से समझ लेते हैं. In this slide, we are going to discuss how words can be formed by letters. For example, when letters are written separately, they are not word. When they are close to each other, they become a word.
S. P, I, N is incorrect and P, I, N, pin is correct. Now let's move to the reading. This is the second part of English syllabus. अब तक आपके बच्चे ने लिखना सीखा और हरूफ से शुरू होकर लफ्ज़ तक पहुंच गया. अब हम उनको पढ़ना सिखाएंगे. वैसे तो ये दोनों पार्ट्स साइड बाय साइड पैरेलल चलते हैं, लेकिन यहाँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, समझाने के लिए हमने इनको अलग अलग किया है. Although it is little bit difficult for them, but together we can do it. The first step of reading is recognition. अगर बच्चे को हुरूफ की आवाज़ की पहचान नहीं होगी तो पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा, क्योंकि उनको जोड़ के पढ़ने में बहुत मुश्किल महसूस होगी. For the recognition, I am telling you a magical technique. It is called 3-period lesson. Please learn it and try it at home. 3-period lesson is one of the Dr. Maria Montessori's technique of teaching to the children. It is divided into 3 stages: introduction, recognition and confirmation. Here you can see the introduction. इसका तरीक़ाकार ये है कि इसमें हम बच्चे को जो लेटर्स या हुरूफ की जिनकी पहचान करवाना चाहते हैं उनके फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं, सिर्फ 3 फ्लैश कार्ड्स एट अ टाइम, और हम उनके बारे में बताते हैं. दिस इज़ ए, बी, ब, सी, ख, और इस तरह से हम पहले पीरियड में बच्चों का सिर्फ इंट्रोड्यूस कराते हैं. आफ्टर इनफ इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पीरियड वी विल मूव टू द सेकेंड पीरियड. सेकेंड पीरियड इज़ रिकग्निशन, यानी कि पहचान. सेकेंड पीरियड में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेटर्स और साउंड्स याद करवाई जाती हैं. मिसाल के तौर पे उन्हीं तीनों कार्ड्स को बच्चों के आगे रख के कहा जाएगा, गिव मी ए, गिव मी बी, गिव मी सी. थर्ड पीरियड इज़ कन्फर्मेशन. थ्रू क्वेश्चनिंग वी विल कन्फर्म कि हमने अब तक बच्चे को जो कुछ सिखाया है वो उसको आ गया कि नहीं आया. इसके लिए हम उसको वही 3 कार्ड्स दिखाएंगे और उससे पूछेंगे व्हाट इज़ दिस. ही विल टेल अस दिस इज़ ए, एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ए. ही विल टेल अस ए. नाउ ही इज़ एबल टू आंसर क्विकली. एक बात ख्याल रखें कि अगर बच्चे को कोई कार्ड रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको चेंज करके अगले सेट में शामिल कर लें. Another very important thing is that there are 2 kind of alphabets: capital alphabets and small alphabets. Capital alphabets are called the naming alphabets and small alphabets are the sounds of naming alphabets. All the naming alphabets have their own sound. We call them phonics or sound. Phonics are very helpful to start reading. That's why all over the world they are using phonics to learn the spelling. So you must also concentrate on the sounds. For example, a, b, b, c, k. So there are the sounds or phonics of the alphabets: a, b, b, c, k, d, d, e, f, g, g, h, h, I, j, j, k, k, l, m, n, o, p, p, q, q, r, s, t, t, u, v, v, w, x, y, and z, z. Now your child learn the phonics and sounds. He can spell or speak 3-letter words very easily, like k, a, t, k, a, t, cat, p, I, n, p, I, n, pen. At last, before ending my presentation, I am giving you some tips for the betterment of your child. Every child has an absorbent mind, so always give them the correct knowledge. क्योंकि बच्चा एक दफ़ा जो कुछ सीख लेता है वो उसके जहन पे हमेशा के लिए नक्श हो जाता है.
इसलिए उसको बिल्कुल सही नॉलेज प्रोवाइड कीजिए। एज मारिया मोंटेसरी सेड, हैंड्स आर द टूल्स ऑफ इंटेलिजेंस। हम अपने हाथों से जो भी काम करते हैं उसको हम कभी नहीं भूलते। हमारे बच्चों की भी बिल्कुल यही फितरत होती है। सो गिव दैम इनफ मटीरियल एंड different activities like flashcards, sand trays, object box, and many other things. Your child is passing through the language periods, so provide him simple and sufficient vocabulary for his spoken English. बच्चा हमेशा वो ज़बान सीखता है जो उसके सराउंडिंग्स में बोली जा रही है, तो try to speak in English small sentences with them and provide them the readers according to their age and provide them enough vocabulary. इस एंड में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ऑलवेज बी इन टच विद द रेलेवेंट टीचर फॉर गाइडेंस। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Sadia Mehboob from Nursery KG wing of Divisional Public School and Intermediate College, Lahore. Today I will share some useful tips in maths for our new beginners like nursery students. Montessori level पर जो बच्चे की स्टार्टिंग एज होती है स्कूल एडमिशन के लिए या मॉन्टेसरी में एडमिशन के लिए वो राउंड अबाउट 2.5 ईयर से स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत अर्ली एज होती है। इसमें बच्चे की पेंसिल ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन सम हाउ अगर पेरेंट्स थोड़ा बहुत घर में बच्चे को कलरिंग वगैरह करवा रहे हैं सपोज, तो फिर उनकी पेंसिल ग्रिप जो है बहुत लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो जब हमारे पास बच्चे आते हैं मॉन्टेसरी लेवल पर स्कूल एडमिशन होता है उनका, तो हम सबसे पहले जो फोकस करते हैं पेंसिल ग्रिप है। पेंसिल ग्रिप मीन्स हाउ टू होल्ड अ पेंसिल, ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर। उसके लिए ये मैंने एक स्लाइड ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स के नंबर्स के साथ जो है 1 2 3 के साथ बताया गया है कि किस तरह से बच्चे को पेंसिल पकड़ना बताना है, जो कि 2 फिंगर्स जो हैं विद 1 थंब के साथ जो है बच्चा पेंसिल को होल्ड करता है, चाहे वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। सेम मेथड ही अडॉप्ट किया जाएगा और बच्चे को बताया जाए बाकायदा पेंसिल पकड़ के और उसको बार बार प्रैक्टिस करवाई जाए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनको नहीं पता होता कि उन्होंने पेंसिल किस तरह पकड़नी है और सम टाइम पेरेंट्स भी इस चीज़ को बॉदर नहीं करते। वो ये समझते हैं कि बच्चे ने पेंसिल बस पकड़ी हुई है, वो जिस तरह से भी पकड़ी हुई है, एटलीस्ट वो लिख रहा है, उस काम कर रहा है, तो बस यही इनफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। मॉन्टेसरी रूल्स के मुताबिक पेंसिल ग्रिप जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है ताकि बच्चे की एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बने पेंसिल पे और उसके मुताबिक वो काम कर सके। तो आप देख सकते हैं इस पेंसिल ग्रिप में नंबर 1 2 3 यानी 2 फिंगर्स और थंब की मदद से जिस तरह से पेंसिल को पकड़ा गया है। टॉल फिंगर जो है वो साइड पे है, थंब जो है वो पैड उस पे है, पॉइंटिंग फिंगर है टिप पर और फिंगर्स तमाम जो हैं वो स्लाइटली बेंड की गई हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस, मैं आपके साथ बच्चे जब बिगनर्स के लिए कुछ लाइंस का कॉन्सेप्ट शेयर करना चाह रही हूँ। हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले उनको पेंसिल ग्रिप सिखाई जाती है, उसके बाद उनको लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। मेरे नज़दीक ये कॉन्सेप्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि इससे बच्चे के लिए राइटिंग करना आसान हो जाता है, चाहे वो नंबर्स राइटिंग हो, अल्फ़ाबेट राइटिंग हो या उर्दू के हरूफ लिखने हों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लाइंस आपके सामने जो ड्रॉ की हुई हैं, स्ट्रेट लाइन, देन अ स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन, स्लैश, अगेन स्लैश, राइट लेफ्ट स्लैश, ठीक है, और हाफ सर्कल, देन अगेन हाफ सर्कल। बच्चे को आप राइट लेफ्ट हाफ सर्कल बता सकते हैं या जस्ट वैसे ही ड्रॉ करके बता सकते हैं कि हाफ सर्कल दो तरह से उन्होंने कैसे ड्रॉ करने हैं। देन फुल सर्कल एंड अ यू शेप सर्कल या स्माइली बना दें कुछ इस तरह से बच्चे को, क्योंकि बताने के लिए बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा इन लाइंस के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ही
बहुत कुछ नंबर्स जो हैं वो ओरली ही सीखना शुरू कर देता है। जैसे आप उसको बता सकते हैं कि बेटा स्ट्रेट लाइन इज़ 1, ठीक है। अब ट्रू अगर आपने उनसे ड्रॉ मतलब राइट करवाना है तो आप बता सकते हैं हाफ सर्कल देन अ लिटिल स्लैश देन अ स्ट्रेट स्लिपिंग लाइन इज़ 2। तो जब आप उसको रिकग्निशन करवा रहे होते हैं 7 नंबर दिखा के और उसको इन कॉन्सेप्ट्स का बताएंगे लाइंस की मदद से, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने जहन में बेसिकली रिकग्निशन के साथ साथ उन लाइंस के कॉन्सेप्ट को अपने जहन में वो बिठाता जाएगा। और उसके बाद अगर आप उससे ओरली भी पूछेंगे ना, जुबानी जब भी आप उससे पूछेंगे कि सपोज आप उससे 5 का पूछ रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं स्लैश एंड अ हाफ सर्कल देन अ स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन व्हाट इज इट। तो बच्चा अपने माइंड में फौरन रिकॉल करेगा, उसकी एक शेप बनाएगा और आपको बता देगा कि दैट इज 5। आप उसको पूछेंगे अगर स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन देन स्लैश, वो फौरन अपने जहन में उसको रिकॉल करेगा, एक उसका एक इमेज बनाएगा और आपको बताएगा 7। इसी तरह इंग्लिश में भी और मैथ उर्दू में भी हरूफ और अल्फ़ाबेट्स वो भी इन्हीं शेप्स की मदद से बनाए जा सकते हैं। और जब तक ये लाइन कॉन्सेप्ट बच्चे को प्रॉपर नहीं होगा वो प्रॉपर राइटिंग भी नहीं कर सकता। पेंसिल ग्रिप और लाइंस कॉन्सेप्ट के बाद थर्ड नंबर पे रिकग्निशन है। जब तक बच्चे को रिकग्निशन नहीं होगी नंबर्स की, डेफिनेटली ना तो वो कुछ समझ पाएगा और ना ही कुछ लिख पाएगा। अब रिकग्निशन के लिए कुछ चीज़ें बच्चे को सबसे पहले तो आपने नंबर्स का कॉन्सेप्ट दे दिया, आपने उनको समझा दिया, नंबर्स की रिकग्निशन करवा दी, उसको अच्छी तरह से लर्न करवा दिया कि ये नंबर्स कौन से हैं। उसके बाद जब हम उन नंबर्स की राइटिंग की तरफ आते हैं तो कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो सम टाइम बच्चे कर रहे होते हैं या पेरेंट्स की तरफ से हो रही होती हैं। चूँकि ज़ाहिर है स्कूल का पैटर्न नहीं पता होता पेरेंट्स को, तो डेफिनेटली वो अपने तरीके से सम टाइम करवा रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा मोंटेसरी रूल्स के मुताबिक आपको बताना चाहती हूँ और इंटरनेशनली जिस तरह से नंबर्स राइटिंग करवाई जाती है, मैं वो थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस करूँगी। वो ये कि सबसे पहले तो आपने बच्चे को जब राइटिंग स्टार्ट करवाई, तो डीपीएस में चूँकि ज़ीरो से स्टार्ट करवाया जाता है, लिहाजा आपने ज़ीरो से जब उसको लिखना स्टार्ट करवाया, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि बच्चे को आपने ये बताना है कि ये 0 टू 9 जो सिंगल डिजिट्स हैं, दे आर कॉल्ड यूनिट्स। इनको यूनिट्स कहा जाता है और ये एक 0 टू 9 जस्ट लाइक अ फैमिली, फैमिली की तरह है। और जैसे ही 9 के बाद 10 आता है, यानी 2 डिजिट्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपने इसकी प्लेसमेंट चेंज कर देनी है। इसको आपने दूसरी जगह पे लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, नेक्स्ट ब्लॉक में लिखना है। अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स कॉपी पे जब लिखना स्टार्ट करवाते हैं तो वो 9 के बाद 10, 11, 12, 13 जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं वो नीचे ही करते जाते हैं जब तक कि पेज एंड नहीं होता, और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे लेके आते हैं। जब वो लाइन एंड होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे वो ले जाते हैं, जो कि नहीं, रॉन्ग है। आपने बच्चों को ये बताना है कि आपने यूनिट्स अलग लिखने हैं और टेंस अलग लिखने हैं। उसके लिए आपको यूनिट्स और टेंस का कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है कि जो सिंगल डिजिट्स हैं वो यूनिट्स कहलाएंगे और जो डबल डिजिट्स हैं वो टेंस कहलाते हैं। ये देखिए, अब मैं आपके सामने करेक्ट फॉर्म राइटिंग बता रही हूँ आपको। बिल्कुल इस तरह से आपने बच्चों को कॉपी पे करवाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि 0 टू 9 डिजिट्स जो हैं वो एक लाइन में लिखे गए हैं और जैसे ही उनका नंबर इंक्रीज हुए हैं, टेंस यूनिट्स जो हैं वो टेंस में तब्दील हुए हैं, तो फौरी तौर पे उनको हमने उनकी प्लेसमेंट चेंज कर दी है और उनको ऊपर नेक्स्ट ब्लॉक में लिखा गया है। तो आप बच्चे को यही बताएंगे कि 0 टू 9 जो है वो यूनिट्स हैं और जैसे ही उनका लेवल इंक्रीज होता है वो सिंगल से डबल डिजिट्स में आते हैं। डबल नंबर्स जब बन जाएंगे तो आपने उनको ऊपर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है।
और ये टेंस कहलाते हैं और 3 नंबर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि जब और साथ साथ आप उनको बताएंगे कि जैसे 10, 11, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, दीज आर टीन नंबर्स। ठीक है, और ये एक फैमिली है, इसको हम 10 की फैमिली भी कह सकते हैं। और जैसे ही 19 के बाद 20, इट मीन के दोबारा से उनका लेवल इंक्रीज हुआ और वो 20 हम नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि नेक्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे और वो टी फैमिली है। अब आगे 20, 30, 40, 50 टिल 80, 90 तक जो है ये टी फैमिली कहलाती है, जिसमें कि आप 20 से 29 तक 20 की फैमिली है, 30 से 39 तक 30 की फैमिली, 40 से 49 तक 40 की फैमिली है, और हम 50 तक बच्चों को नर्सरी लेवल पे करवाया जाता है ये, लिहाजा 50 तक ही इस वक्त बताया जाएगा। तो 90 तक ये टी फैमिली चलती है और 99 तक, उसके बाद फिर हंड्रेड्स स्टार्ट हो जाता है, वो कि डेफिनेटली वो तो केजी लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो आपने रिकग्निशन में उनको यही चीज़ें समझानी है कि यूनिट्स क्या हैं, टेंस क्या हैं, और टीन नंबर्स और टी नंबर्स क्या हैं। इनके लिए आप छोटे छोटे से फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं इन्हीं नंबर्स के, उनको सिखाने के लिए, बताने के लिए। और कॉपी पे जब बच्चे को लेकर आना है आपने, तो आपने इसी पैटर्न के मुताबिक जो आप स्लाइड स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी पैटर्न के मुताबिक आपने लेकर चलना है और इसी तरह से बच्चे को स्टार्ट से ही बताना है ताकि वो स्टार्ट से ही ठीक लिखना शुरू करे, गलत ना करे। अब नेक्स्ट स्टेप पे है राइटिंग फॉर्मेशन। बच्चे को रिकग्निशन भी हो गई है, तो अब हमें डेफिनेटली उनको लिखना सिखाना है। अब लिखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने लिखना किस तरह से है। प्लेसमेंट भी हमने उसको बता दी है कि किस तरह से उन्होंने यूनिट्स अलग लिखने हैं और 3 नंबर्स अलग लिखने हैं, लेकिन उस ज़रूरी ये है बताना कि लिखना किस तरह से है। इसके लिए मैंने ये आपके साथ एक स्लाइड जो ये शेयर कर रही हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि आपने बच्चे को, मैंने ये डॉट्स लगाए हुए हैं, डॉट्स और उसके नीचे एरो का इंडिकेशन दिया गया है एरो के ज़रिए, ताकि आपको इजी हो समझना कि किस तरह से राइटिंग बच्चे को बतानी है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से, यानी अप टू डाउनवर्ड जाना है या डाउन टू अप आना है। क्योंकि बच्चा जो है वो देख के लिखना सीख लेता है उसको, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसने स्टार्ट किस तरह से करना है और कहाँ से करना है। आया अप टू डाउन जाना है या डाउन टू अप जाना है। बच्चे अक्सर हमारे पास प्रैक्टिस में ये चीज़ देखने में आती है कि वो आपके सामने लिख लाते हैं और वो आपको समटाइम कह भी रहे होते हैं कि हमने लिख तो लिया है ये एज इट इज़, जैसा आपने बताया है, लेकिन ये टीचर ने देखना होता है और घर में पेरेंट्स ने, मदर्स ने, जो भी पढ़ाने वाला है उसने देखना होता है कि आया वो जिस तरीके से लिख रहा है वो भी प्रॉपर है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ कि नंबर 1 आप देख रहे हैं, जहाँ डॉट लगाया है डॉट से स्टार्ट करना है और अप टू डाउन जाना है। इसी तरह नंबर है, ये स्ट्रेट लाइन है, आप बच्चे को बता सकते हैं। इसी तरह नंबर 2 है, आप डॉट से स्टार्ट करवाएं। आप कॉपी कॉपी पर बच्चे को डॉट लगा कर देंगे, क्योंकि स्कूल में हम बच्चों को डॉट लगा कर देते हैं और कॉपी में आप भी डॉट लगा कर देंगे। उनको बताएंगे कि हाफ सर्कल एंड अ स्लैश देन अ स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन इज 2। आप इसी तरह से उनको बताएंगे तो वो बच्चों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और साथ साथ इवन आप जुबानी उनको बताते जाएंगे ना, जस्ट ड्रॉ अ हाफ सर्कल देन अ स्लैश एंड देन अ स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन, तो वो खुद ब खुद वही चीज़ ड्रॉ करेगा जो आप उसको नंबर पूछ रहे होंगे। इसी तरह से उसको बताएं कि 2 हाफ सर्कल इज 3, देन slash sleeping straight line and a straight line is 4। आपने 4 में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा जो है कभी भी पहले स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ ना करे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस पे क्रॉस लगाया हुआ है उस लाइन पे, आपने सबसे पहले उसको यही बताना है कि आपने यू हैव टू ड्रॉ अ स्लैश देन अ स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन, देन इन द एंड यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज 4। ठीक है, और वो प्रॉपर फॉर्मेशन है राइटिंग के लिए।
और इसी तरह से 5 में भी बच्चे यूजुअली ऐसा करते हैं कि वो ऊपर स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करते हैं और देन स्लैश और हाफ सर्कल बना लेते हैं। वो 5 बना देते हैं आपको, लेकिन आपने उनको बताना है, आपने डॉट लगाना है, उनको बताना है कि सबसे पहले आपने स्लैश, छोटा सा एक स्मॉल स्लैश ड्रॉ करें, देन अ हाफ सर्कल, और उसके बाद एंड पर आपने ऊपर स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन डालना है और 5 को कंप्लीट करना है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इसी तरह से 6 है, अ स्लैश एंड अ फुल सर्कल इज 6। नंबर 7 आप देख लें, नंबर 7 स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन एंड अ स्लैश इज 7। नंबर 8 इज, आप देख सकते हैं 8 के लिए थोड़ा सा बच्चों को आपने ट्रिकी बताना है तरीके से कि आपने एक अगर एस बनाना है, एस बेसिकली 8 जो है वो एस की शेप में होता है, लेकिन अगर उसको सपोज एस नहीं आता अभी बनाना, तो आप उसको ये कह सकते हैं हाफ सर्कल, देन अ फुल सर्कल, एंड अगेन उसको ज्वाइन करने के लिए जो हाफ सर्कल जो बना के आपने उसको 8 की फॉर्मेशन सिखानी है। यूजुअली बच्चे 8 लिखने के लिए 2 0 बना देते हैं, 2 zeros को जोड़ देते हैं आपस में वो, और वो 8 बन जाता है, लेकिन वो रॉन्ग है। आपने उनको जो प्रॉपर फॉर्मेशन है राइटिंग की वो ही सिखानी है, कि जिस तरह से आप एस बनाएं और उसके बाद हाफ सर्कल, 2 हाफ सर्कल्स के जरिए उसको ज्वाइन कर दें। अदरवाइज वही जो मैंने आपको बताया है, हाफ सर्कल देन अ फुल सर्कल और फिर अगेन हाफ सर्कल उसके साथ ज्वाइन करके 8 बनाएं। 9 के लिए हाफ सर्कल, जो कि सी शेप, सी भी आप बच्चे को कह सकते हैं कि जस्ट ड्रॉ अ सी, अदरवाइज हाफ सर्कल एंड देन अ स्ट्रेट लाइन इज 9, और 0 जो है दैट इज अ फुल सर्कल। ठीक है, अब 0 के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि 0 जो है फुल सर्कल तो है, लेकिन उसकी शेप जो है वो एग्जैक्ट सर्कल की तरह नहीं है। 0 की शेप थोड़ी ओवल शेप में होती है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और 0 जब बच्चे को आपने लिखना है, बताना है उसको कि ये ओवल शेप में आएगा, आपने बिल्कुल राउंड सर्कल नहीं बनाना, क्योंकि राउंड सर्कल जो है वो ओ बन जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जबकि 0 की शेप ओवल में होती है, बिल्कुल राउंड नहीं होती है। राइटिंग फॉर्मेशन के साथ साथ बच्चे की राइटिंग ऑन कॉपी शुड बी नीट एंड इन प्रॉपर मैनर्स। बच्चे को स्टार्ट से ही कुछ ऐसी टिप्स बता दी जाएं जो कि उसको, जिससे उसको ये हेल्प मिले कि उसने कॉपी को किस तरह से अपना नीट वर्क करना है कॉपी पर। क्योंकि टीपीएस में कॉपी वर्क जब करवाया जाता है तो उसमें राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। नीट राइटिंग को हमेशा से ही क्रेडिटेबल कहा जाता है। तो इसमें मैंने ये स्लाइड इस आपको दिखाने के लिए बनाई है कि आप ये देख सकते हैं कि बच्चा जब लिखता है कॉपी पर, तो अगर उसको प्रॉपर गाइड ना किया जाए तो लिख तो रहा है, अब आप ये इनकरेक्ट फॉर्म में देख सकते हैं 0 1 2 3 उसने लिखा तो है और बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा। जबकि आप करेक्ट फॉर्म में देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्रॉपर ऑर्डर में सब कुछ लिखा गया है और वो नीट इम्पैक्ट दे रहा है। तो आपने बच्चे को यही बताना है कि आपने इनकरेक्ट फॉर्म में नहीं लिखना। करेक्ट फॉर्म क्या है कि आपने बॉक्स के अपर और लोअर जो लाइन है उसको टच करते हुए लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप 0 अगर लिखवा रहे हैं बच्चे को, तो आपने सबसे पहले तो उसको ब्लॉक के ऊपर एक डॉट लगा कर देना है, जो उसकी अपर वॉल है उसके ऊपर डॉट लगा देना है। और जैसे ही आप डॉट लगाएं, बच्चे को आप बताएं, गाइड करें कि इस डॉट से आपने स्टार्ट करते हुए शुरू करना है, और नीचे जो लोअर लाइन है उसकी, उसको टच करते हुए वापस ऊपर आना है और उसको कंप्लीट करना है नंबर को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0 आप अपर और लोअर लाइन को टच कर रहा है, लेकिन राइट और लेफ्ट टच नहीं कर रहा। इट मीन कि जो नंबर लिखा जाए वो बिल्कुल ब्लॉक के मिड में लिखा जाए। ठीक है, इसी तरह आप 1 भी देख सकते हैं
कि अपर और लोअर वॉल को टच कर रहा है वो बॉक्स की, लेकिन राइट लेफ्ट को टच नहीं कर रहा और बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है। जबकि आप इनकरेक्ट फॉर्म में देख सकते हैं कि जैसे 0 बच्चा छोटा सा लिख रहा है ब्लॉक के मिड में, 1 ब्लॉक से बाहर जा रहा है, 2 जो है साइड पर है, इसी तरह 3 जो है वो बड़ा है और एक कॉर्नर को जा रहा है। तो जब बच्चा 0 to 50 तक काउंटिंग लिखता है और अगर इस तरह से लिखेगा तो ऑब्वियसली वो कॉपी एक बीट इम्पैक्ट नहीं देगी। जबकि करेक्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं कि अगर इसी तरह से जैसे मैंने बताया है कि अपर और लोअर वॉल को टच करना है, राइट लेफ्ट को टच नहीं करना और सेंटर में लिखना है, तो जब बच्चा काउंटिंग लिखेगा तो वो बहुत ही नीट इम्पैक्ट देगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। और डीपीएस की राइटिंग ग्रेस यही है कि हम बच्चे को इस तरह से करवाते हैं ताकि उसकी कॉपी नीट लुक दे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो ये कि जब आपने राइटिंग करवानी है बच्चे से तो उसको ये ज़रूर बताना है कि उसने एक ब्लॉक छोड़कर लिखना है। जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा जहाँ मैंने सीक्वेंस से राइटिंग काउंटिंग की हुई थी, वहाँ पे आपने नोट किया होगा कि हमने एक एक ब्लॉक छोड़ के लिखा है। आपने उसको स्टार्ट से ही बताना है कि बेटा यू हैव टू लीव 1 ब्लॉक। ठीक है, जैसे 0 आपने एक ब्लॉक में लिखा है तो नेक्स्ट ब्लॉक आपने स्किप करना है और उसके नेक्स्ट में आपने 1 लिखना है, फिर एक ब्लॉक स्किप करके दूसरे ब्लॉक में 2 लिखना है। इससे आपकी राइटिंग जो है और एक प्रॉपर मैनर में आ जाएगी और बहुत नीट इम्पैक्ट देगी। बच्चे को राइटिंग करवाते वक्त आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्म में प्लेसमेंट में ये देखा जाए कि आया बच्चा जब यूनिट से नेक्स्ट स्टेप पर आता है यानी टेंस लिखता है तो उसके लिए चूंकि टेंस 2 डिजिट्स हो जाते हैं, डबल नंबर हो जाता है, तो उसके लिए ब्लॉक भी उसने सेपरेट ही यूज़ करने हैं। यानी ऐसा ना हो कि बच्चा जिस तरह से 0 1 2 3 एक ब्लॉक में लिख रहा है इसी तरह से वो 10 11 12 13 भी वो एक ही बॉक्स में लिखता जा रहा है। उसको आपने ये बताना है कि चूंकि इनका लेवल इंक्रीज हो गया, ये यूनिट से अब टेंस बन गए हैं, सिंगल डिजिट से ये डबल हो गए हैं, तो लिहाजा आपने उसका एक नंबर एक बॉक्स में लिखना है और दूसरा नंबर दूसरे बॉक्स में लिखना है। जैसे कि आप ये करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्म में देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे उसी तरह से 10 11 12 13 लिख रहे होते हैं, मतलब उनको नहीं पता होता। ये पेरेंट्स ने गाइड करना है उनको कि जैसे हम स्कूल में गाइड करते हैं कि टेंस लिखने के लिए आपने 1 अलग लिखना है और 0 अलग, 11 के लिए इसी तरह 1 अलग और दूसरा 1 अलग लिखना है। यानी 1 के नीचे सारे टेंस टेंस आएंगे और 0 के नीचे सारे यूनिट्स लिखे जाएंगे। एक चीज़ जो आपने बतानी है बच्चों को बहुत ज़रूरी है वो ये कि प्लेसमेंट जब आप कर रहे हैं तो लिखना आपने उसी तरह से है, यानी 10 की फैमिली 19 तक लिखनी है और 20 उसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉक में आपने लेकर जाना है। नेक्स्ट बॉक्स से वो स्टार्ट करते हुए 20 की पूरी फैमिली कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ जो मैं पेरेंट्स को स्पेशली कहना चाह रही हूँ वो ये कि काइंडली जो क्लास वर्क स्कूल में करवाया जाता है या जिस तरीके से कॉपी वर्क हुआ होता है बच्चों का, उसी को फॉलो करते हुए आप होमवर्क करवाएं। अक्सर मेरे पास ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स सम टाइम नहीं ध्यान करते और बच्चा जब घर से स्कूल में तो उसने उसी तरह से काम किया होता है जैसे कि ये करेक्ट फॉर्म में मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, लेकिन जब वो घर से काम करके आता है तो वो उसने एक ही ब्लॉक में 10 11 12 13 इस तरह से लिखा होता है, उसको सेपरेट बॉक्सेस में नहीं लिखा होता। तो बच्चा जब हम स्कूल में करवाते हैं तो वो सेपरेट बॉक्सेस में होता है, बच्चा इस तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि आया करेक्ट फॉर्म कौन सी है, क्योंकि घर से वो कोई और पैटर्न को फॉलो कर रहा है, स्कूल में वो किसी और तरीके से समझ रहा है। तो काइंडली पेरेंट्स भी इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करें, वो ये कि क्लास वर्क की जो कॉपी आपके पास आती है, नोटबुक जब घर में आती है, उसमें जो होमवर्क दिया गया होता है, पहले आप क्लास वर्क को अच्छे तरीके से एक दफ़ा ऑब्जर्व कर लें
कि किस तरह से काम करवाया गया है और बिल्कुल उसी तरह से आप बच्चे को होमवर्क भी करवाएं। और उसी तरह से जब बच्चा दोबारा से समझेगा, काम करेगा, तो उसको आसानी हो जाएगी, उसकी एक प्रॉपर रीइंफोर्समेंट होगी। नर्सरी लेवल पे बच्चों को स्पेलिंग कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं आपके साथ एक दो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ शेयर करना चाहती हूँ। चूँकि नर्सरी में बच्चों को 0 to 9 तक स्पेलिंग्स सिखाए जाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को एकदम से अगर हम ज़ुबानी उनको सिखाना शुरू कर देते हैं ZERO 0 ONE 1, तो उनके लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं ये रहता। मतलब पहले बच्चा हमेशा लर्निंग वहीं से करता है जहाँ उसका इंटरेस्ट भी हो। लिहाजा लर्निंग के लिए इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं अपना आपको तरीका शेयर करूँगी कि हमने बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं, स्पेलिंग्स के भी और नंबर्स के भी। आप खुद घर में भी बना सकते हैं। आप मार्केट से चार्ट पेपर खरीद के उसके छोटे छोटे से कार्ड्स बना लें फ्लैश कार्ड्स की सूरत में, और आप हाफ कार्ड्स के ऊपर 0 to 9 तक नंबर्स लिख दें और बाकी हाफ कार्ड्स के ऊपर स्पेलिंग्स लिख दें 0 से 9 तक के। तो उसके बाद आप बच्चे को सबसे पहले नंबर्स दिखाएंगे फ्लैश कार्ड्स की मदद ज़रिए और उसको उनकी रिकग्निशन चेक करेंगे। जब आप देख लेंगे कि बच्चा को नंबर्स की रिकग्निशन है, तो उसके साथ साथ आप फिर बच्चे को पूछेंगे कि आपको पता है ये 0 जो आपने बोला है इसका स्पेलिंग्स क्या है। फिर उसके साथ साथ आप स्पेलिंग वाला फ्लैश कार्ड 0 के साथ रखेंगे, उनको बताएं कि ये लर्न करें स्पेलिंग को। तो वो लर्न करेगा जब ZERO 0। इस तरह से 3-4 दफ़ा आप रेपिटिशन करवाएंगी नंबर्स की भी और स्पेलिंग कार्ड्स की भी। तब जब ये बार बार बच्चा लर्न करेगा, देखेगा, वो उसकी नज़रों से गुजरेगा, गो थ्रू होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसके जहन में ये फिक्स हो जाएंगे। और ये एक एक्टिविटी हो गई कि जिसमें आपने सिर्फ शो करवाया है बच्चों को नंबर्स भी और उनके स्पेलिंग्स भी। अब नेक्स्ट स्टेप पे दूसरी एक्टिविटी फिर आप इस तरह से करेंगे कि आप कोई भी नंबर बच्चे के सामने रखेंगे, जस्ट लाइक 2 रख दिया आपने, और आप उसको पूछेंगे कि ये विच नंबर इज दिस। जैसे ही वो आपको नंबर बताएगा, आपने उसको कहना है कि इसका मैचिंग स्पेलिंग जो है 2 का जो स्पेलिंग मुझे फाइंड आउट करके आप दिखाएं। इन फ्लैश कार्ड्स को जंबल अप किया होगा आपने, उसमें से बच्चा जैसे ही TWO2 वाला फ्लैश कार्ड पिक करेगा और वो 2 के साथ उसको रखेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको भी आइडिया हो जाएगा कि बच्चे ने उसकी रिकॉग्निशन भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और उसको स्पेलिंग्स का भी पता चल चुका है। तो इस तरह की छोटी सी एक्टिविटीज़ जो हैं आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा खेल खेल में लर्न करता है और वो स्पेलिंग्स का कॉन्सेप्ट भी सीखेगा और साथ में नंबर्स की रिकग्निशन भी होती जाएगी। उसके बाद आप उन्हीं फ्लैश कार्ड्स की मदद से उनको जंबल अप करके बच्चे को मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं। जस्ट एक लाइन में आपने सीक्वेंस डिफरेंट रैंडमली आपने नंबर्स लगा दिए हैं और बच्चे को कहें कि उसके फ्लैश कार्ड्स जो हैं उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ उठा के उनके साथ उनके आगे उसकी प्लेसमेंट करता जाए। तो उसके बाद जब ये बच्चा फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए लर्न कर लेता है, तो फिर हम उसको कॉपी पे लेकर आते हैं। कॉपी पे लिखने के लिए आप उसको इसी तरह से एक लाइन में ही, चूँकि ये 0 से 9 तक यूनिट्स हैं सारे, तो एक ही लाइन में आपने उनको 0 to 9 तक लिखवाना है और उसके आगे उनके स्पेलिंग्स बच्चे से लिखवाने हैं। चूँकि बार-बार फ्लैश कार्ड्स देखने से बच्चे को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आप उसको ज़ुबानी ही अगर पूछते हैं ना SEVEN, तो वो फ़ौरन बोलेगा 7, NINE 9, फ़ौरन वो आपको आंसर करता है। और इसी तरह से वो जब लिखेगा तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें सब रिकॉल होंगी उसके माइंड में और वो बहुत आराम से अच्छे तरीके से उसको स्पेलिंग्स को लर्न भी करेगा और लिख लेगा। दिस वॉज द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ुबिया है। नर्सरी KG विंग से मेरा ताल्लुक़ है और आज मैं आपको ये जो हमारी ओरिएंटेशन है जो कि
कभी आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकते थे। जो भी सिचुएशन है उसके वजह से हम यानी इन्हीं डेट्स में जो एक्सपेक्टेड थी वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सके। तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि आपके और हमारे जो फासले हैं वो कम हो गए हैं। उम्मीद है कि आप सब इस ओरिएंटेशन से अभी तक जितनी भी आपने देखी होगी फ़ायदा उठा रहे होंगे और आपके बच्चों को इससे सीखने में कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा। मेरे जो पास आए हैं कुछ टास्क, उसमें है ये उर्दू की राइटिंग और रीडिंग से रिलेटेड मैंने आपसे बात करनी है। उर्दू टेक्निकली बच्चों को सीखना मुश्किल लगती है बिकॉज़ ये है भी मुश्किल, ग्रामेटिकली भी और फॉर्मेशन के और आवाज़ों के हिसाब से भी टेक्निकली इसके हरूफ तहजी भी ज़्यादा हैं। तो अक्सर बच्चों को उर्दू सीखने में प्रॉब्लम होती है। हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों को यानी उर्दू का जो सीखने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हम ईजी करें ताकि वो उसको आसानी से सीख सकें। डीपीएस का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसके ऊपर हम चल रहे होते हैं कि ये यहाँ से अलिफ से लेकर से तक एक लाइन में आएगा। सिमिलरली जीम की फैमिली, नीचे देख लीजिए दाल और रे की फैमिली एक ही लाइन पे आएंगे। ये वाला जो तरतीब है ये पूरे डीपीएस के तमाम सेक्शंस में नर्सरी क्लास में फॉलो की जा रही है। तो काइंडली जब भी बच्चों को एक्चुअली याद रखिएगा कि जब आप बच्चे को एक दफ़ा एक चीज़ बता देते हैं तो उसे हटाकर दूसरी चीज़ पे लेकर आना उसको थोड़ा सा ट्रबलसम करता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप बच्चे को सिखा रहे हो, जब जितनी भी हरूफ तहजी आप ये इन दिनों तक सिखा सकें उनको उनकी तरतीब यही रहे। एक्टिविटीज करवाते हैं इसमें पहली होती है कि तस्वीर का अगला ये हर्फ से अगला हर्फ लिखते हैं, यानी एक हर्फ दिया जाता है और आगे। अच्छा, ये वाला जो पैटर्न है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ही चलता है। हम बच्चों को असेसमेंट भी इन्हीं लाइंस पे ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे आ गया जीम से अगला हर्फ लिखें, फिर यानी चे से, फिर इस तरह हे और खे की भी बात होगी। तस्वीर बनाना बुनियादी तौर पे बच्चे की तख्लीकी सलाहियत को उभारता है, उसकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है, वो सोचता बहुत ब्रॉडर लेवल पे है और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मतलब सिंपल और स्ट्रेट बात मैं ये करती हूँ। एक बच्चा एक सीधी लाइन लगा के ला के मुझे कहता है ये मैंने सेब बनाया है, तो आई डू एक्सेप्ट इट। ये अलग बात है कि बाय द एंड ऑफ द क्लास नर्सरी सब बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकें पेपर के ऊपर। और हमने ड्राइंग की क्वालिटी नहीं देखनी होती, बच्चे की क्रिएटिविटी देखनी होती है। एनीवेज आगे चलते हैं। तस्वीर से हर्फ से तस्वीर बनाएं। अब ये जीम से वो जो भी तस्वीर बनाए, जितनी वोकैबुलरी उसने सीखी है वो सारी उसके ऊपर, यानी कोई उसमें से कोई एक सिलेक्टिव तस्वीर वो बना सकता है। बच्चों को बार बार इनकरेज करें, इवन इंग्लिश में भी जो लेटर वो लिखते हैं उसके साथ रेलिवेंट जो पिक्चर है उसको वो जरूर प्रैक्टिस में करें। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी है आपके सामने। तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखें। बुनियादी तौर पे ये दोबारा से वही बात है कि जो हर्फ बच्चे ने पढ़ा है उसकी आवाज और उसकी आवाज का इस्तेमाल, इसके दरमियान में वो कोऑर्डिनेशन कर सकता है और इस तरह से उसकी आवाजों की जो पहचान है वो मजबूत होती है। जैसे जूता है तो वो आगे जीम लिखेगा, इसी तरह चांद और हुक्का और खरबूजा। तो ये उसकी रीडिंग को और इसकी जो रिकग्निशन है इसको एनहांस कर रहा है। जी, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी है कि हर्फ को तस्वीर से मिलाएं, यानी इधर हरूफ लिखे हुए हैं और इधर रैंडम पिक्चर्स बनी हुई हैं, वो बच्चा इसको मिलाएगा। एक दफा फिर जो इसका बुनियादी मकसद है वो उसकी आवाजों का जो पहचान है वो मजबूत करना है। ये एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर होती हैं और मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्हीं एक्टिविटीज के इन्हीं लाइंस के ऊपर हम बच्चों को साल के आखिर में असेस भी कर रहे होते हैं। जी, अब बात करते हैं उर्दू की रीडिंग की। ये जिस तरह राइटिंग के ऊपर है फोकस, इसी तरह हम रीडिंग के ऊपर भी बात करते हैं।
आप देख रहे हैं कि ये कायदे का सफ़ा है हमारा। ये जो कायदा सुनहरे हरूफ हैं, इसमें तस्वीरें हैं और हर्फ है और हर्फ से रिलेटेड पिक्चर्स हैं। बच्चा इसको देखकर अपनी साउंड्स की रिकग्निशन करता है। देखें, आवाज़ की जो पहचान है वो बुनियादी बात है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ आवाजें मिलकर एक लफ्ज बनता है। जब तक एक बच्चे को लफ्ज हरफों की पहचान नहीं होगी तो वह लफ्ज की पहचान करना उसके लिए, या कल को इमला में मसला आता है, बच्चों की डिक्टेशन उतनी इम्प्रूव नहीं रहती, तो ये वाला जो फर्क है और ये वाला जो उसका पहचान है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। रीडिंग भी इसी से रिलेट कर रही होती है। रंगीन तस्वीरें बच्चों की इमेजिनेशंस को जो है वो उजागर करती हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि अलिफ और अंगूर के नीचे अंगूर लिखा हुआ भी है। शुरू में बच्चे को नहीं पता चलता कि इसको एज अ होल वर्ड भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे ये जो लफ्ज हैं ये पढ़ने सीख लेते हैं। यही वजह है कि जब केजी क्लास से बच्चा पास आउट होता है तो वो उर्दू के बहुत सारे मुश्किल और बड़े लफ्ज भी पढ़ने के काबिल हो जाता है, क्योंकि वो तकरीबन साल 1.5 साल से रीडिंग के जो हमारे जो कायदे हैं उनके ऊपर लिखे हुए हरूफ को पढ़ने का आदी होता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी कि बच्चों के राइटिंग पोस्चर के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। यकीन करें कि स्कूल में जब हम बच्चों को ये EPL की एक्सरसाइज करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले ये राइटिंग पोस्चर भी हम सिखाते हैं। अब राइटिंग पोस्चर ये है कि आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट हो, आपके पाँव जो हैं वो जुड़े हुए हों, आपका जो पेपर और आइज का डिस्टेंस है वो बड़े मुनासिब फासले पे हो। यानी इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा झुक के लिख रहे हों या बहुत ज़्यादा दूर रखें। आई रिपीट कि अभी जो बच्चों की हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी वो थ्रू आउट देयर लाइफ उनके साथ रहेंगी। काफ़ी बड़ी क्लासेस के बच्चे भी बहुत ज़्यादा सर झुका के लिखते हैं या बहुत कैजुअल अंदाज में। प्लीज़ 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 बच्चों को ये अलाउ ना करें कि वो अपने घुटनों के ऊपर रख के या ज़मीन के ऊपर रख के कॉपी और लेट कर या इस तरह से। एक्चुअली स्कूल में बच्चे पाबंद होते हैं कि वो 6 आवर्स के लिए बैठे हुए हैं टेबल चेयर के ऊपर और वहाँ पे उनको लिखने में जैसे पर्सनली मैं कभी भी बच्चे को अलाउ नहीं करती कि अगर वो डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है तो वो कॉपी जो है वो अपने घुटने पे रखे या उसको मतलब फोल्ड लगाएं या टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बखेर के वो लिखें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेबल शुड बी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। फी अमानिल्लाह, गुड लक टू योर चाइल्ड। Assalamu alaikum. Welcome to the DPS family. I am Shamila Aziz. In this pandemic situation, we have to stand together. Your cooperation and our guidance put together will make us able to go through this difficult time easily and successfully, inshallah. We have provided you with material in the form of videos and text. My dear parents, kindly support and facilitate your child in executing the task. We are looking forward to seeing you soon in healthy, happy times. Stay connected and stay blessed. Allah Hafiz.